Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Stuti Mahajan. Today, I'm going to discuss latest changes in tax audit report, Form 3CD. Let's see. Latest changes in tax audit report, Form 3CD. Introduction. Form 3CD revised with effect from 1st October 2020 by notification number 82 by 2020. Income tax dated 1st October 2020. But the schema for the same changed on 22nd October 2020. जो फॉर्म 3CD है वो 1 अक्टूबर 2020 को ही नोटिफिकेशन के थ्रू रिवाइज कर दिया गया था, बट उसका जो स्कीमा है, जो यूटिलिटी है, वो किस दिन चेंज हुई है? 22 अक्टूबर 2020 को. Now the question arises, what is the status of tax audit report submitted on or after 1st October 2020 until the release of new schema? Are they invalid tax audit reports and who is responsible for such negligence? 1 अक्टूबर 2020 से लेके जिसने भी 22 अक्टूबर 2020 तक जो भी हमने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की है, तो उसका स्टेटस क्या रहेगा? वो भी वैलिड रहेंगी या इनवैलिड हो जाएंगी? Before the change in schema on 22nd October 2020, the schema was last changed on 25th August 2020. तो जो recent अभी changes आई हैं 22nd October 2020 को, जो इस schema के अंदर changes आई हैं, आज हम उसको discuss करेंगे. Details of changes in schema on 22nd October 2020 are as follows. तो जो changes आई हैं schema के अंदर वो ये हैं. इसको हम one by one अभी study करेंगे. Newly added provisions. Form number 3CD and 3CEB have been notified to accommodate the newly added provisions of section 115BA, 115BAA, 115BAB, 115BAC and 115BAD. तो इसके प्रोविजंस को ऐड करने के लिए फॉर्म जो 3CD है उसको मॉडिफाई किया गया. तो इसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये जो सेक्शंस हैं वो क्या हैं. सेक्शन 115BA टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज. तो जो कंपनीज के ऊपर जो टैक्स का रेट है उसके लिए टैक्स जो लगता है वो आते हैं सेक्शन 115BA. Section 115BAA new tax rate for the domestic companies. The section 115BAA was introduced by the Government of India through the Taxation Ordinance 2019 on 20 September 2019, and also the MAT rate has been reduced from 18.5 to 15%. नेक्स्ट सेक्शन क्या है इसमें? सेक्शन 115BAB कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. First, the Income Tax Amendment Ordinance 2019 had inserted a new section 115BAB for concessional rate of tax for new manufacturing companies. तो new manufacturing units को promote करने के लिए, उनको concessional rate देने के लिए, इसके लिए ये वाला section जो था वो introduce किया गया. The government has introduced a favorable tax regime for new manufacturing companies. The taxation laws passed on 20 September 2019 has inserted section 115BAB offering a low tax rate of 15% to new manufacturing companies. तो सबसे पहले जब आप फॉर्म की यूटिलिटी को ओपन करेंगे तो फॉर्म 3CD के अंदर 8 नंबर के आप ऊपर जाओगे तो वहां पर आप चेक करोगे whether the assessee has opted the taxation under section 115BA, 115BAA, 115BAB नया इंट्रोड्यूस उन्होंने कर दिया. तो यहाँ पर आपको येस और नो उसको सिलेक्ट करना है. इनकेस अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो येस, तो येस करने के बाद आपको आगे सिलेक्ट करना है सेक्शन अंडर विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज. तो आपको जो भी सेक्शन है, पर्टिकुलर सेक्शन है, उसको आपको सिलेक्ट करना है. सबसे पहले चेंज तो ये है. देन सेकंड चेंज क्या है इसके अंदर? एडजस्टमेंट्स इन WTB. In Form 3CD, clauses have been added to provide information regarding the exercise of the option by the assessee and provide further adjustments in WTB if the same is exercised. अगर आपने 115BA की ऑप्शन को ऑप्ट किया है तो उसको ऑप्ट करने की वजह से WTB के अंदर जो एडजस्टमेंट आई है वो आपको देनी है. लेट्स चेक. अगर आपने 115BAA को ऑप्ट किया है तो वो हम कहाँ पर देंगे? यहाँ पर आप आओ फॉर्म नंबर 3CD के पॉइंट नंबर 18 के ऊपर. Particulars of depreciation allowable as per the Income Tax Act 1961 in respect of each asset or block of assets as the case may be.
तो यहाँ पर जब आप देते हो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑप्टिंग WDV, तो नेक्स्ट एक वहां पर कॉलम ऐड कर दिया गया है, एडजस्टमेंट मेड टू द WDV अंडर सेक्शन 115 BAA फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 ओनली। अगर आपने सेक्शन 115 BAA को ऑप्ट किया है तो उसकी वजह से जो WDV के अंदर एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी तो वो आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे। नेक्स्ट चेंज क्या है, 269 SS न्यू ड्रॉप डाउन वैल्यूज एडेड। 31A के अंदर आप देखोगे particulars of each loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in section 269 SS taken or accepted during the previous year। तो यहाँ पर पहले ऑप्शंस क्या आते थे, चेक, बैंक ओवरड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो इसके अंदर नई ऑप्शंस क्या ऐड कर दिया उन्होंने, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया IMPS, UPI, RTGS, नेफ्ट, भीम। तो ये सब डिटेल्स उन्होंने जो है वो ऐड कर दी। 269T न्यू ड्रॉप डाउन वैल्यूज एडेड। तो सेम वे के अंदर अगर आप चेक करोगे 269T के अंदर भी इसी तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ये सारे ऑप्शंस उन्होंने ऐड कर दिए, IMPS, UPI, RTGS, नेफ्ट, भीम, तो ये सब उन्होंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट चेंज क्या है, लॉसेस अलाउंसेस नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAA एंड एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन। अगर आपने सेक्शन 115 BAA को ऑप्ट किया है तो उसकी वजह से कुछ ऐसे लॉसेस हैं या अलाउंसेस हैं जो कि अलाउड नहीं है, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करने हैं। तो अब आप चलो इसके लिए पॉइंट नंबर 32A जहां पर इसको आपको चेंज करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको देनी है। Details of brought forward loss or depreciation allowance in the following manner to the extent available। तो ये जो 32A के अंदर आप चेक करोगे यहाँ पर उन्होंने कॉलम इंसर्ट कर दिया, all losses allowances not allowed under section 115 BAA। आपने 115 BAA को ऑप्ट कर लिया, लेकिन उसकी वजह से जो लॉसेस और अलाउंसेस उस सेक्शन के अंदर अलाउड नहीं है उसको आप यहाँ पर मेंशन करोगे। Then amount as adjusted by withdrawal of additional depreciation on account of opting for taxation under section 115 BAA। Again आपने section 115 BAA को ऑप्ट किया है, उसकी वजह से अगर आप additional depreciation कोई क्लेम कर रहे हो तो उसको भी आप विड्रॉ करोगे, यहाँ पर उसकी भी एडजस्टमेंट आप दिखाओगे। नेक्स्ट न्यू बिजनेस कोड्स। तो अपना जो फॉर्म है 3CD फॉर्म के अंदर 10A के अंदर आप चेक करोगे नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जब आप यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन के नेचर के लिए जो कोड सिलेक्ट करते हो तो उस लिस्ट को आप चेक करोगे, उस लिस्ट को ऐड कर दिया गया। अब उस लिस्ट को स्टार्टिंग में आप चेक करोगे तो पहले कोड्स वही हैं जो हमारे पुराने फॉर्म में थे, देन उसके बाद नए कोड उसके अंदर क्या ऐड किए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्टिविटीज, ये वाला इसके अंदर नया कोड आपका ऐड कर दिया गया। तो ये सारे के सारे जो फॉर्म 3CD के अंदर चेंजेस आए हैं, ये सब चेंजेस आए हैं 22 अक्टूबर 2020 को। तो ये लास्ट मोमेंट के ऊपर ये जो इन्होंने जो भी चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए हैं, अब हमें जो भी फाइल करनी है तो इन सब चेंजेस के अकॉर्डिंगली हमें फॉर्म जो है वो फाइल करना है। और सबसे ज्यादा इसके अंदर वर्किंग जो हमारी बढ़ गई है वो क्या है, सेक्शन 115 BA। अगर आप लोगों ने ये ऑप्ट किया है तो पहले ही इस फॉर्म को फाइल करने से पहले ही इसका डाटा अपने पास प्रिपेयर करके रखना होगा। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Didi Mahajan, CS Sansar. Thank you.